بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ لبنان میں اسرائیل کے حملے، حزب اللہ کے 2 کمانڈرز ہلاک، کابینٹ نے نتن یاہو کو سخت کارروائی کا اختیار دے دیا۔ حزب اللہ نے لبنان اور سیریا میں ٹھکانے بدل دیے، رکن پارلیمنٹ نے کہا حملہ کیا گیا تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کئی ایئر لائنز نے بیروت کے لیے فلائٹس روک دی، مغربی ملکوں نے کہا صبر سے کام لیں۔ امریکہ کی اسرائیل اور لبنان کے عہدیداروں سے بات چیت۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں واٹر پلانٹ کو دھماکے سے اڑا دیا، 24 گھنٹوں میں 39 فلسطینی جاں بحق۔ ترکی غزہ جنگ میں مداخلت کر سکتا ہے، طیب اردوان نے اسرائیل کو کیا خبردار۔ یائر لاپڈ نے کہا ترک صدر ایک بار پھر چلا رہے ہیں۔ نکولاس مدورو دوبارہ وینزویلا کے صدر بن گئے، اپوزیشن نے نتیجوں کو رد کر دیا، کہا چیلنج کریں گے۔ امریکہ اور کئی ملکوں نے وینزویلا کے نتیجوں پر کیا فکر مندی کا اظہار، ایران، رشیا اور دوسروں نے دی مدورو کو مبارکباد۔ اگنی پتھ اسکیم پر راہل گاندھی اور راجناتھ سنگھ میں تکرار، لیڈر آف اپوزیشن نے کہا بجٹ صرف 2-3% انڈینز کے لیے تیار کیا گیا۔ حکومت مسلمانوں کو اچھوت سمجھتی ہے، تعلیم نہیں، نوکری نہیں، لوک سبھا میں اسد الدین اویسی کی تقریر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے جولان پہاڑیوں کے علاقے میں 13 نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ان واقعات سے مڈل ایسٹ میں ایک بڑی جنگ کے خطرے بڑھ گئے ہیں۔ لبنان کے شہروں حولا، مرحبا، ایت الشباب، قائم، شاہین، یارون، میسل جبل، کفر قلعہ، برج الشمالی میں حملے کیے گئے۔ ہفتے کو ایک راکٹ حملے میں جولان پہاڑیوں کے علاقے میں جہاں اسرائیل کا قبضہ ہے کم سے کم 13 نوجوان ہلاک ہوئے تھے، ان میں 12 بچے شامل تھے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ کی ایک ہنگامی میٹنگ میں صورتحال پر غور کیا گیا، جس میں نتن یاہو کو حزب اللہ کے خلاف کارروائی کا اختیار دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ IDF کے تازہ حملوں میں ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے 2 ارکان ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ کی میٹنگ میں نتن یاہو اور وزیر دفاع یوو گیلنٹ کو جواب دینے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اسرائیل نے اس حملے کے لیے حزب اللہ کو ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس حملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ حزب اللہ کو اس حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ یہ حملہ مسجد الشمس علاقے میں اس وقت کیا گیا جب بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اس حملے میں 44 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ جس جگہ یہ حملہ ہوا وہاں پر دروز کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان 10 مہینوں سے جاری جھڑپوں میں سب سے خطرناک حملہ ہے۔ مغربی ملکوں نے اسرائیل سے کہا کہ وہ صبر سے کام لیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ وہ اس حملے کے بعد سے اسرائیل اور لبنان کے عہدیداروں سے بات چیت کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ وہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان غیر سرکاری سرحد بلو لائن پر تناؤ کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے اس حملے کے بعد اپنا امریکہ دورہ مختصر کر دیا، انہوں نے کئی میٹنگز کی۔
लेबनान के एक सीनियर रुकन पार्लियामेंट ने इसराइल को जंग के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि अगर वो लेबनान पर जंग थोपेगा तो इस जारहियत के नतीजे में उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेबनानी पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह की सियासी शाख के रुकन मोहम्मद राद ने कहा कि सहयूनी दुश्मन गाजा पट्टी में अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह फलस्तीनियों की मुजाहमत और साबित कदमी है और मुजाहमत के महवर की तमाम ताकतों की मदद है। लेबनान के कारगुजार वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अबू हबीब ने कहा है कि मजदल शम्स हमले से इसराइल को लाइसेंस टू किल नहीं मिल जाता। उन्होंने इस हमले की मजम्मत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में हमला हुआ वो सीरिया का है, जिस पर नाजायज कब्जा किया गया है और वहां रहने वाले लोग सीरियन हैं। इसराइल को इस हमले के बाद सेल्फ डिफेंस के नाम पर लेबनान के खिलाफ जारहियत का कोई हक नहीं मिल जाता। कई एयरलाइंस ने बेरूत के लिए अपनी फ्लाइट्स रोक दी हैं, इनमें लुफ्थांसा एयरलाइन भी शामिल है। इससे पहले टर्किश एयरलाइंस ने बेरूत के लिए फ्लाइट्स रोकने का ऐलान किया, जिसकी वजह इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग के अंदेशे हैं। ग्रीक एयरलाइन एजीएम, इथोपियन एयर, एमएई और दूसरी एयरलाइंस ने भी फ्लाइट्स रोकने का ऐलान किया। द्रूज एक अरब कम्युनिटी है, लेकिन वो इस्लाम की एक अलग शक्ल पर अमल करती है। इस इलाके में रहने वाले द्रूज वफादारियों के एतबार से बटे हुए हैं। कुछ लोग इसराइल के लिए काम भी करते हैं और कुछ लोग इसराइली शहरियों की हैसियत से अपना नाम दर्ज कराने से भी इनकार करते हैं। इसराइली फौज ने कहा कि उसने गैलीली इलाके में लेबनान से फायर किए गए एक ड्रोन को मार गिराया। इस इलाके में सायरन की आवाजें गूंजती रही। खबरों में कहा गया कि लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह ने अपने ठिकानों को बदल दिया है। गाजा में इसराइल के हमले जारी हैं। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 39 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 94 जख्मी हुए। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से कम 39,363 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 90,923 जख्मी हुए हैं। इस दौरान फलस्तीन की वजारत तालीम ने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइल के हमलों में तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स और 400 टीचर्स जाँ बहक हुए। इसराइली फौज ने बताया कि पिछले 24 घंटों में गाजा में 35 ठिकानों पर हमले किए गए। इसराइली सिपाहियों ने रफा के सबसे बड़े वाटर प्लांट को धमाके से उड़ा दिया, जहां से पीने के पानी की जरूरतें पूरी होती थीं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि वाटर टैंक को तबाह करने के बाद शहर में पानी का बहरान पैदा हो गया। गाजा म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि साहली पट्टी में पुरजों और आलों की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जंग से पैदा सूरत हाल से निमटने में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। इसराइली फौज ने खान यूनिस के मरकजी इलाके शेख नासिर में बमबारी की। गाजा में अब सिर्फ 14% इलाके ऐसे हैं जहां पर इसराइल ने तखलीए का हुक्म नहीं दिया है। इस सूरत हाल में मुश्किल यह है कि गाजा के फलस्तीनियों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की गाजा जंग में दखल अंदाजी कर सकता है। एर्दोगान ने कहा कि 2020 में लीबिया की लड़ाई में तुर्की ने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से तस्लीम की जाने वाली हुकूमत का साथ दिया था। उन्होंने पिछले साल के एक ऑपरेशन का भी हवाला दिया था, जब तुर्की के इत्तेहादी अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया था। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क फलस्तीनियों की ऐसी मदद कर सकता है, लेकिन उन्होंने तफसील नहीं बताई। तुर्क वजारत खारजा ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को हिटलर करार दिया। वजारत ने कहा कि जिस तरह नाज़ियों ने नस्ल कुशी की थी उन्हें जवाबदेह बनाया गया था, इसी तरह इसराइली हुकूमत को भी फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। इंसानियत फलस्तीनियों के साथ है और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान आलमी ज़मीर की आवाज़ है। इसराइल के अपोजिशन लीडर यार लापिड ने तैयब एर्दोगान के बयान पर तनकीद करते हुए उन्हें मिडल ईस्ट के लिए खतरा करार दिया। यार लापिड ने जंग में मुदाखलत के बारे में बयान पर रिएक्शन देते हुए एक्स पर लिखा कि सदर एर्दोगान एक बार फिर चिल्ला रहे हैं, वो मिडल ईस्ट के लिए खतरा बन रहे हैं। क्वाड मुल्कों ने गाजा में फौरी सीज फायर और होस्टेजेस को रिहा करने का मुतालबा किया। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका शामिल है। जापान के दारुल टोक्यो में क्वाड मुल्कों की मीटिंग के बाद एक बयान जारी किया गया। चारों वजीरों ने कहा कि वो 2 रियासती हल के तहत एक आजाद, ठोस और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के हामी हैं। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है बताया कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान ताज़ा तनाव के बाद हिजबुल्लाह और ईरान की मदद रखने वाली दूसरी तंजीमों और फाइटर्स ने सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क और दूसरे इलाकों में अपने ठिकानों को खाली कर दिया है।
जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को वेनेजुएला में लेफ्ट सदर निकोलास मदुरो एक बार फिर इलेक्शन जीत गए हैं। इलेक्टोरल काउंसिल ने नतीजों का ऐलान किया। नेशनल काउंसिल के सदर ने कहा कि 80% से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है। सदर मदुरो ने 51% वोट हासिल कर लिए हैं, जो उनके असल मुखालिफ से 44% ज्यादा हैं। वेनेजुएला की अपोजिशन ने नतीजों को रद्द कर दिया और इसे जालसाजी करार दिया। अपोजिशन ने नतीजों को चैलेंज करने का ऐलान किया। अपोजिशन ने कहा कि उसके उम्मीदवार एडमंड गोंजाल्वेस ने 70% वोट हासिल किए हैं और उन्हें सदर बनने का हक हासिल है। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा था ताकि मदुरो को बेदखल किया जा सके, जो 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं। ओपिनियन पोल्स में कहा गया था कि मदुरो को शिकस्त होगी। इंटरनेशनल मीडिया में वोटर्स के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया था कि वो तब्दीली के लिए वोट दे रहे हैं। अपोजिशन ने उम्मीद जाहिर की थी कि वो आसानी से कामयाबी हासिल कर लेगी। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन उन ओहदेदारों में शामिल हैं जिन्होंने नतीजों के ऐलान के बाद शुबहात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका को नतीजों पर तशवीश है। ये नतीजे वेनेजुएला के अवाम के वोटों की मर्जी को जाहिर नहीं करते। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने भी नतीजों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक ने कहा कि इन नतीजों पर यकीन करना मुश्किल है। बोरिक ने कहा कि मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी लाई जानी चाहिए। यूरुग्वाई के सदर ने मदुरो हुकूमत के बारे में कहा कि नतीजे चाहे जो भी हों, जीत उनकी ही होगी। इस दौरान मदुरो के इत्तेहादियों ने फौरी उन्हें मुबारकबाद दी, जिनमें ईरान भी शामिल है। ईरानी वजारत खारजा ने कामयाब सदारती इलेक्शंस के लिए वेनेजुएला को मुबारकबाद दी। वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने तेहरान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मदुरो को वो मुबारकबाद देते हैं। वेनेजुएला पर पाबंदियां हैं, खतरे हैं, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी से ये इलेक्शंस हुए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आप ये बात याद रखें कि रशिया की जमीन पर आपका हमेशा इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने मदुरो को मुबारकबाद देते हुए ये बात कही। क्यूबा के सदर ने कहा कि वेनेजुएला के अवाम की बहादुरी और वक़ार ने दबाव और उलटफेर को शिकस्त दी है। मदुरो ने इस नतीजे को अमन इस्तेहकाम की कामयाबी करार दिया। दारुलहुकूमत कराकास में अपने हामियों से खिताब करते हुए उन्होंने वेनेजुएला के अवाम और इलेक्शन सिस्टम की तारीफ की और अपने मुखालिफिन का मजाक उड़ाया। वेनेजुएला में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होती है। असल अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था और उन पर पाबंदी लगाई गई थी। मदुरो ने कहा कि वो मुल्क में कौमी बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला को हकीकी मायनों में आजाद रखना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच किसी तीसरे फरीक के इम्कान को रद्द कर दिया। जयशंकर, जो जापान के दौरे पर हैं, कहा कि चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात खराब होने की वजह 2020 में छुपी हुई है। कोविड के दौरान चाइना ने हमारी सरहदों पर फौजें जमा की। वो गलवान वादी में तनाव और झड़पों का हवाला दे रहे थे। इन झड़पों में 20 इंडियन फौजी हलाक हुए थे। अग्निपथ स्कीम के बारे में लोकसभा में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के दरमियान तकरार हुई। राहुल गांधी ने दावा किया कि अग्निपथ स्कीम मुल्क के सिपाहियों की इज्जत और माली सिक्योरिटी छीन रही है। मरकजी वजीर ने इल्जाम लगाया कि लीडर ऑफ अपोजिशन झूठी मालूमात फैला रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। बजट तजवीजों पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बजट एक ऐसा हलवा है जो कुछ लोगों ने सिर्फ 2-3% इंडियंस के लिए तैयार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में खौफ का माहौल पाया जाता है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अपोजिशन बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बजट का मकसद इजारतदारी या मोनोपोली को मजबूत करना है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों को अछूत समझती है। उन्होंने लोकसभा में बजट तजवीजों पर बहस में हिस्सा लेते हुए मुसलमानों की मौशी जिद्दोजहद का जिक्र किया। उन्होंने मुसलमानों के साथ हुकूमत के सलूक पर बेइत्मीनानी का इजहार करते हुए वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की तकरीर में मुसलमानों पर तवज्जो न देने पर तनकीद की। ओवैसी ने कहा कि मुल्क में मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब हैं, मुस्लिम औरतें सबसे ज्यादा महरूम हैं। उन्होंने फिगर्स और डेटा
का हवाला देते हुए कहा कि 15 और 24 साल की उम्र के दरमियान के सिर्फ 29% मुसलमानों को तालीम तक एक्सेस हासिल है। आला तालीम में मुसलमानों की मौजूदगी सिर्फ 5% है। मुस्लिम नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके लिए तालीम के मौके नहीं हैं। उन्होंने माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट 5,000 करोड़ से घटाकर 3,000 करोड़ करने पर तनकीद की और कहा कि 2007-8 से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में इजाफा नहीं हुआ है। लोकसभा एमपी ने कहा कि हज कमेटी करप्शन का अड्डा बन गई है। उन्होंने इन धांधलियों की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। सदर मजलिस ने अपनी तकरीर का इख्तिताम बाज शेरों से किया और कहा कि इंडिया तकलीफ में है। दिल्ली में राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश के दौरान पेश आने वाले सानहे के सिलसिले में एक एसयूवी गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस ड्राइवर ने बेसमेंट की गेट तोड़ दी थी। इस हादसे में 3 स्टूडेंट्स हलाक हुए थे, जिनमें से एक का ताल्लुक तेलंगाना से था, जो आईएएस कोचिंग के लिए वहां रहते थे। इस हादसे के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एकेडमी के मालिक और कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। लेबनान में इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स हलाक। कैबिनेट ने नेतन्याहू को सख्त कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। हिजबुल्लाह ने लेबनान और सीरिया में ठिकाने बदल दिए। रुकने पार्लियामेंट ने कहा हमला किया गया तो इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। कई एयरलाइंस ने बेरूत के लिए फ्लाइट्स रोक दी। मगरबी मुल्कों ने कहा सब्र से काम लें। अमेरिका की इसराइल और लेबनान के अहदेदारों से बातचीत। इसराइली फौज ने रफा में वाटर प्लांट को धमाके से उड़ा दिया। 24 घंटों में 39 फलस्तीनी जाँ बहक। तुर्की गाजा जंग में मुदाखलत कर सकता है। तैयब एर्दोगान ने इसराइल को किया खबरदार। यार लापिड ने कहा तुर्क सदर एक बार फिर चिल्ला रहे हैं। निकोलास मदुरो दोबारा वेनेजुएला के सदर बन गए। अपोजिशन ने नतीजों को रद्द कर दिया, कहा चैलेंज करेंगे। अमेरिका और कई मुल्कों ने वेनेजुएला के नतीजों पर किया फिक्रमंदी का इजहार। ईरान, रशिया और दूसरों ने दी मदुरो को मुबारकबाद। अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी और राजनाथ सिंह में तकरार। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा बजट सिर्फ 2-3% इंडियंस के लिए तैयार किया गया। हुकूमत मुसलमानों को अछूत समझती है, तालीम नहीं, नौकरी नहीं। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर। आज की खबरों से जो लफड़ा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।